Good morning, students. In our previous classes, we have seen that management is a dynamic process where a manager has to perform varieties of activities and all the activities are interrelated to each other. So, in our today's class, we are going to see what are the various functions or activities that are to be performed under a management of the organization. In total, management has to perform 5 basic functions, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. If you can see the picture, I have prepared the arrows which indicate that the very first step involved into function of management is the planning. The second step is always organizing. The third step is always staffing. Fourth step is directing, and the last step is the controlling. So these are the various functions of management which are to be performed by the manager. So let us try to see what these functions are all about. Before starting with the today's discussion, I'll just let you know that all these 5 functions, they are nothing but the 5 upcoming chapters which we are going to see in detail in our coming sessions. So today we are just going to see the overview all the functions of management are all about. So the very first functions of management that a manager has to perform is the planning. In simple terms or in general terms, what do you understand by planning? कुछ plan करना. Let's take a small simple example. Suppose you want to prepare for your board examination and you are left only with 1 month on your hand. अब आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स या 6 सब्जेक्ट्स आपको परफॉर्म करने हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यू विल हैव टू टेक वेरियस डिसीजन कि व्हेन आप टाइम टेबल बनाओगे, कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट को आपको फॉलो करना है. अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है तो आप उसको कितना टाइम दोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ डे टाइम टेबल, सो फ्रॉम मॉर्निंग 8 to 10 यू विल बी डूइंग विद अकाउंटेंसी. Say 10 to 11 you are going to take a break, 11 to 12 or 1 again you are going to deal with your English subject or so on. दोपहर को 2 से 5 you will be taking a power snap. ठीक है, बाद में शाम को 5 से 7 बजे तक एक सब्जेक्ट, 7 से 8. तो इस तरह से क्या करोगे, आप आपके पूरे दिन को प्लान करोगे कि किस तरह से आप आपके पूरे सब्जेक्ट को परफॉर्म अच्छे से बोर्ड एग्जाम में कर पाओगे. सो व्हाट इज दैट इज नथिंग बट अ प्लानिंग. So what do you understand in terms of management? What do you understand by planning? So planning is a function where you are determining in advance what to do, when to do, how to do and who is going to do. ठीक है. So simple terms में planning का मतलब क्या होता है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है and उसको कौन करेगा. So in terms of planning here, always the planning starts with setting of the goals and the टारगेट. जब तक आप टारगेट या गोल सेट नहीं करते हो तब तक आप कुछ भी चीज प्लान नहीं कर पाओगे. जैसे फॉर एग्जांपल इन ऑर्डर टू स्टार्ट विथ योर डे टाइम टेबल, पहले आप टारगेट सेट करोगे कि कुछ भी हो जाए मुझे बीएस में ये फर्स्ट चैप्टर के 4 आंसर्स या 5 आंसर्स कंप्लीट करने ही करने हैं. इफ यू सेट योर टारगेट देन ओनली यू विल बी एबल टू प्लान योर एक्टिविटी. You are going to plan your timing. So your planning always starts with setting of the organizational goals and objective or setting of the targets. Then you are going to find out the way how it is to be achieved. And planning also helps in predicting the problems. Future में क्या problem आप सिर्फ predict, आपको पता नहीं होता कि ये problem आने ही वाली है, but you still try to predict. जैसे कि for example आप पढ़ रहे हो और हो सकता है कि आप एकदम पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में चले जाओ टेंशन की वजह से, या टेंशन इतना हो रहा है कि आपको कुछ याद ही नहीं हो पा रहा है, आप ग्रास्प ही नहीं कर पा रहे हो. तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं. सो हियर यू ट्राई टू डेवलप योर कंटीजेंसी प्लान. कंटीजेंसी प्लान क्या हो सकता है, जैसे कि आप लिख के कोई चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, या हर दो एक चैप्टर या 2 आंसर पढ़ने के बाद आप खुद का टेस्ट ले रहे हो. सो व्हाट इज दैट. ठीक है. सो हियर प्लानिंग इज नथिंग बट यू आर सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट्स. You are trying to find out the ways how these targets are going to be achieved effectively and efficiently, and if any problem may persist in future then planning helps in predicting the problem and develop a contingency plan. जरूरी ये प्लानिंग सिर्फ प्रेडिक्ट करता है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, बट कभी भी एश्योरिटी से नहीं बोला जा सकता है कि ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा. सो दैट इज योर फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग. अब एक बार आपने टारगेट डिसाइड कर दिया, आपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सेट कर दिए, अब आपको लोगों को इस काम के लिए लगाना पड़ेगा. यू विल हैव टू असाइन वेरियस ड्यूटीज. आपको टास्क में ऑर्गेनाइज ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, अथॉरिटी देनी पड़ेगी, रिसोर्सेज देने पड़ेंगे. तो ये क्या होता है, दैट इन शॉर्ट आपने जो भी एक्टिविटीज करने वाले हो उसको आपको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है. सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजिंग. दिस इज द सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हुज मेन टास्क इज टू असाइन द ड्यूटीज टू वेरियस डिपार्टमेंट और टू वेरियस पीपल, ग्रुपिंग द टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज. अब इन 4 वर्डिंग्स का मतलब क्या होता है.
Now, in order to do your objectives or achieve your objectives or do your activities in a proper way, usually the business organizations are divided into different departments or into different work unit. That is, आप डिपार्टमेंट में आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हो, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट है. तो ये आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपने आपका जो भी टास्क है, आपका टास्क क्या है, ग्रुपिंग दी टास्क का मतलब क्या है, आपका काम है टारगेट अचीव करना. अब वो टारगेट आप किस तरह से अचीव कर रहे हो, बाय डिवाइडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट. हर डिपार्टमेंट को आप अपने उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हो, उनको अथॉरिटीज दे देते हो. जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है कि इतना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन होना चाहिए, तो इट इज गिवन दिस ड्यूटी ऑफ गेटिंग द वर्क डन इज गिवन टू द प्रोडक्शन मैनेजर और द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ दैट प्रोडक्शन. सिमिलरली फाइनेंस डिपार्टमेंट को आप यह अथॉरिटी दे देते हो कि भाई जितना भी फंडिंग का काम है, किस तरह से कितने लोगों को कितने की फंडिंग करनी है या फाइनेंस या मनी प्रोवाइड करना है, देन यू आर गिविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी फाइनेंस मैनेजर. सिमिलरली लीगल डिपार्टमेंट, अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स है उनको हैंडल करना है, तो ये आप काम किसको दे रहे हो, यू आर गिविंग दिस वर्क टू दी लीगल डिपार्टमेंट. कोई भी लीगल मैनेजर है उनको आप ये काम दे रहे हो. सो ऑर्गेनाइजिंग इज नथिंग but all the business, your business organization is divided into different departments, and then each and every department they are given the various authorities, they are given various duties, and whatever resources are required by this department they are provided by the organization. So here each and every department they work under a organizational hierarchy. Now the third important function is staffing. आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है. आपने सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर ली, आपने सारे ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट में भी बांट दिया. अब ये काम करेगा कौन, ठीक है. सो दैट कम्स दी नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज स्टाफिंग. सो स्टाफिंग इज नथिंग बट फाइंडिंग आउट राइट पीपल फॉर राइट जॉब विथ राइट क्वालिफिकेशन. ठीक है, जैसे सिंपल एग्जाम्पल, आई एम अ कॉमर्स टीचर. ठीक है, मेरा जो भी फोर्टे है वो सिर्फ कॉमर्स के सब्जेक्ट में है. हियर दी स्कूल कैन नॉट गिव मी दी सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी और केमिस्ट्री, मैं वो आपको नहीं पढ़ा सकती हूँ. ठीक है. सो हियर मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक होती है, बिकॉज सिंस यू आर डीलिंग विथ ह्यूमंस. ठीक है. सो द वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग इज टू सी दैट राइट पीपल आर एलोकेटेड राइट काइंड ऑफ वर्क. सो हियर द मेन टास्क ऑफ स्टाफिंग, दिस इज द मेन रिसोर्स, इसके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का काम होता है स्टाफिंग करने का, टू फाइंड आउट राइट पीपल फॉर राइट जॉब विथ राइट क्वालिफिकेशन एंड विथ राइट experience. And if any times like training is required, even training are to be provided to the worker. जैसे अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी स्पेशल टाइप ऑफ मशीन्स को हैंडल करना है, ठीक है, वर्कर्स को हर तरह की मशीन हैंडल करना नहीं आता, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है. ठीक है. या फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑल्सो दे ट्राई टू कीप ऑन अंडरटेक वेरियस काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर देयर एम्प्लॉइज, कि किस तरह से स्टाफिंग करना चाहिए, किस तरह से डायरेक्टिंग करना चाहिए, या अगर मोटिवेशन देना है तो व्हाट आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल प्रोविजनल अवेलेबल विद द मैनेजर्स. तो हर चीज में जहां जहां पे भी ट्रेनिंग की जरूरत है, टू गिव देम रिक्वायर अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, दैट इज ऑल्सो द वर्क ऑफ स्टाफिंग. देन कम्स द डायरेक्टिंग. अब आपने सही लोग पकड़ लिए, अब आपको क्या करना है, नाउ द टास्क ऑफ द मैनेजर इज टू डायरेक्ट देम, उनको लीड करना, कि आपका ताकि वॉट एवर टास्क हैज बीन डिसाइडेड दैट टास्क इज कंप्लीटेड इन टाइम. सो डायरेक्टिंग इज नथिंग बट इट इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स the manager, so that he or she can utilize their leadership qualities, so that they can lead, they can influence, and they can motivate their subordinates, so that whatever task has been assigned to them, they are completed, they are performed in a more efficient manner. For example, like a sales manager hai, he is assigned the responsibility and he will be setting the target for each and every sales executive. Then he will review whether the sales executives they are performing well or not from time to time, and if any feedback is required, various feedbacks are provided to the sales executives so that the targets can be achieved. ठीक है. एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज द कंट्रोलिंग. आपने ये सारी चीजें कर ली, लेकिन जो भी काम आप कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, ये किस तरह से पता चलेगा. सो फॉर दैट कंट्रोलिंग इज टू बी डन. सो कंट्रोलिंग इज नथिंग बट इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज एट ऑल द लेवल दे विल बी मॉनिटर्ड. नाउ व्हाई दिस मॉनिटरिंग इज डन, सो दैट whatever current performance is there, it can be compared with the established standard. ठीक है. जैसे सिंपल मैंने बोर्ड एग्जाम से आपका स्टार्ट किया था, आप टेस्ट दे रहे हो, आपने आपके लिए टारगेट सेट किया था कि मुझे कम से कम 75 या 80% आ रहा है, एंड टेस्ट लिखने के बाद आपको पता चलता है कि आपका जो भी परसेंटेज है वो सिर्फ 50 या 55. सो इससे आपको क्या पता चलेगा कि स्टिल यू हैव टू वर्क हार्डर फॉर गेनिंग दैट, जो आपका
बैकअप लॉस हुआ है 20 या 25% का, यू हैव टू बी डू दैट मच मेहनत आपको उतनी डालनी पड़ेगी कि आप वो जो बैकलॉग है 20-25% का वो अचीव कर सको. ठीक है. सो कंट्रोलिंग इज नथिंग बट मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस. Then this controlling helps in comparing the current performance with the standard performance, and if any corrective actions are to be taken, then that corrective actions can be taken so that आप अगर deviate हो रहे हो अपने target से तो आप वो deviation को कम करके आप फिर से सही रास्ते पे आ सको. So these are the various functions of management. Thank you.